Earlier classes, we have a discussion about autotrophs. Autotrophs are manufacturer of food. Now we had also a discussion of had given some glimpse of heterotrophic mode of nutrition. In that period, we had a discussion about saprophytes and parasites. Now we will discuss about holozoic mode of nutrition. What is holozoic mode of nutrition? In holozoic mode of nutrition, animals and organisms takes complex food material and digest it and break down into simplest form. And simplest form of food material is absorbed by the cell. Holozoic mode of nutrition is three types, depends upon the habit and modification of animals. One is saprophytes, next one is parasites. This comes in heterotrophic, and third is holozoic. Holozoic mode of nutrition occurs in unicellular organism and multicellular both. Unicellular organism like amoeba, paramecium takes their food by the method of osmosis because entire body is contact with the environment. इसका entire body environment के contact में रहता है. Unlike it, human beings and multicellular organisms have the digestive system already in it. In unicellular organism like amoeba, chiefly we have to study about amoeba, how amoeba takes its food. Amoeba is a unicellular organism. First, amoeba absorbs the food, then false feet, that called pseudopodia, a finger-like structure, develops in cytoplasm and it engulfs the food. Amoeba has not the definite body structure. It is like this. These projections, finger-like projection, develop through cytoplasm, and when it gets the prey, it engulfs it. Engulfs the prey and make food vacuoles. यह फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है. फूड वैक्यूल्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा इसके शरीर में चला आता है, अमीबा के साइटोप्लाज्म में चला आता है. साइटोप्लाज्म में आकर फूड वैक्यूल्स लाइसोसोम के द्वारा जो सेक्रेटेड एंजाइम होता है, उस एंजाइम के द्वारा फूड आइटम्स ब्रेक कर जाता है और ये सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर जाता है. यह सिंपलर सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में फुल्ली डिफ्यूज हो जाता है और जो एक्सेस वाटर होता है और अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फिर डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं अमीबा. यह सिंपल मोड ऑफ डाइजेशन है, सिंपल मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड इन अमीबा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Like amoeba, paramecium is also a unicellular organism. It has a mouth. The mouth of paramecium is called cytostome. It has the cilia. It has the cilia on its body. Cilia is a hair-like structure. It catches the prey and puts inside the cytoplasm through the mouth.
makes food vacuole. Here also enzyme acts on it, acts on food and digest and fully diffused in cytoplasm. This is the mode of nutrition in unicellular organism. In multicellular organism has well developed digestive system. In multicellular organism like human being has well developed digestive system. हमें खास के ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पढ़ना है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ध्यान देना है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है या भोजन के डाइजेशन का काम करता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मुख्यतः अमीबा के डाइजेशन को बताना होता है और फिर हमारे शरीर में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो किन किन एंजाइम के द्वारा होता है और किन किन चीजों का कहाँ कहाँ पाचन होता है और किस ढंग से एब्जॉर्प्शन होता है, सेल के अंदर एसिमिलेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेस में काम आते हैं। तो आज मेनली हम पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। We have well-developed digestive system. It has the length of 8 to 10 meters, beginning from the mouth and ends with anus. जो मुंह से शुरू होता है, बुकल कैविटी से शुरू होता है और हमारी बड़ी आंत के लास्ट पार्ट जो एनस है वहां जाके इसका पूरा डाइजेशन का अंत हो जाता है, डाइजेशन समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम लोग कंज्यूमर हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर कंज्यूमर, वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, वी कंज्यूम फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं भोजन के रूप में, वह मुंह में जाता है। मुंह हमारा क्लोज रहता है लिप्स एंड चीक्स के द्वारा। उसमें हमारे टीथ है, टंग है। टंग टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। टीथ कटिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग में काम आता है। ये टीथ का काम है भोजन को कट करना, इसको मेस्टिकेट कर देना, भोजन का मेस्टिकेशन यानी चूर्ण बना देना, इसका काम है। साथ ही साथ हमारे मुंह में ये 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से जो एमाइलेज निकलता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, उसको सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। सैलिवरी एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स भोजन को लुब्रिकेट भी करता है। भोजन को लुब्रिकेट करने से फायदा क्या है कि भोजन आसानी से ओसोफेगस के द्वारा स्टोमक में पहुंच जाता है। हमारा दांत भोजन को कट करके, भोजन को चबा के, भोजन का मेस्टिकेशन करके यह क्या करता है कि ये फेरिंग्स में भेजता है और फेरिंग्स के द्वारा उस ओसोफेगस में पहुंचता है। ओसोफेगस में कलमनार मसल होते हैं। मैंने बताया था 9th क्लास में कि तुम टिश्यू पर ध्यान दोगे ज्यादा। तो ये जो मसल होते हैं, ये इस मसल में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है। ये बार बार फैलता सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है। इसको कहते हैं रिदमिक वेव लाइक मोशन। रिदमिक वेव लाइक मोशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज पेरिस्टाल्टिस मोशन, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के द्वारा ओसोफेगस होते हुए फूड पहुंच जाता है हमारे स्टोमक में। स्टोमक में भोजन पहुंचने के बाद स्टोमक एक थैली की तरह स्ट्रक्चर है जो मस्कुलर होता है और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर में 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। इसमें 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड्स से म्यूकस सेल होते हैं जिससे म्यूकस का सेक्रेशन होता है, म्यूकस। दूसरा है ग्लैंड्स जिसको ऑक्जेंटिक ग्लैंड कहते हैं। ऑक्जेंटिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सेक्रेशन होता है। और तीसरा चीफ ग्लैंड है जिससे प्रो
प्रोपेप्सिन का सिक्रीशन होता है। प्रोपेप्सिन इसलिए कहा जाता है कि इट इज नॉट द एक्टिवेटेड एंजाइम, इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl और चेंज इनटू पेप्सिन। तो मैंने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुंह से ओसोफेगस में पाचन होकर कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल जाता है। माल्टोज इज ए शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज एंजाइम के द्वारा, सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में चेंज कर दिया। जब भोजन स्टोमक में पहुंचता है तो स्टोमक की दीवार से जो म्यूकस का सेक्रेशन होता है वह स्टोमक की दीवार को चिकना बनाए रखता है। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है जो स्टोमक की दीवार से को चिकना बनाए रखता है और HCl किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी तरह का स्टोमक की दीवार को हार्म नहीं पहुंचा है, इसलिए यह स्टोमक की दीवार को भी रक्षा करता है। इसके बाद HCl का काम है रोग के जीवाणुओं को मारना और तीसरा ये प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदल जाता है और यहाँ स्टोमक के अंदर भोजन का पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, ये पार्शियल डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टोमक से और स्टोमक के बाद भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फेरिंग्स होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं जिसको कहते हैं ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, थोड़ा हटाइएगा, चिपका दिया।